السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ججز کو موصول ہونے والے مشکوک خطوط سنجیدہ معاملہ ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ سیاست کے بجائے ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرنا ہوگا، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ پی آئی اے کی نجکاری شیڈول کے مطابق ہوگی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کی صدارت میں اقتصادی ترقی سے متعلق اجلاس، عام آدمی پر بوجھ ڈالے بغیر محاصل میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب۔ 5 برس میں مجموعی ملکی پیداوار میں ٹیکسز کی شرح 15% تک لے جائیں گے۔ 18ویں ترمیم کے مطابق متعلقہ وزارتیں صوبوں کے حوالے ہوں گی۔ معاشی استحکام کے لیے IMF کا ایک اور پروگرام ضروری ہے۔ خسارے کے شکار اداروں میں اصلاحات اور نجکاری کا عمل تیز کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ روس کے ساتھ توانائی اور بارٹر تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ تجارت میں اضافے کے لیے روسی بینکوں کو پاکستان میں آپریشن شروع کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ صدر مملکت کی روس کے سفیر سے گفتگو، صدر ولادیمیر پوتن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اقتصادی استحکام کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دینی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، 68,000 کی سطح عبور۔ انڈیکس میں 660 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 68,416 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ 38 کروڑ 87 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی، پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی گڑھی خدا بخش میں مزار پر فاتحہ خوانی۔ شہید بھٹو سیاست کو طاقتور طبقے کے چنگل سے نکال کر عوام میں لائے، ایسے فیصلے کیے کہ تاریخ بن گئے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ملک کو متفقہ آئین دیا، تختہ دار پر لٹک گئے مگر استعماری طاقتوں کے سامنے سر نہ جھکایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک و قوم کے لیے خدمات پر ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ غیر شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 44 سال بعد سپریم کورٹ نے اس تاریخی غلطی کا ازالہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اس ناقابل تلافی نقصان کا مداوع محض آنسو اور نہ ختم ہونے والا افسوس ہے، وزیر اعظم۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوری حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ پیپلز پارٹی عوام کے سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ عوامی مسائل کا حل ترجیح ہے، انتخابات میں ساتھ دینے پر عوام کے شکر گزار ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا فلسطینی عوام کی نسل کشی فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے تمام عالمی فورمز پر ہمیشہ فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ غزہ کے لیے امدادی سامان کی 7 کھیپ بھجوائی جا چکی، ایک اور کھیپ عید کے فوری بعد روانہ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی فلسطینی سفیر احمد جواد ربی سے گفتگو۔
गजा में सेहूनी मजालिम का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज कर गई। 40% बच्चे शामिल। शिमाली गजा में कहत से अमवात, 75% आबादी बेघर, 60% मकानात तबाह। सेहूनी फौज ने 123 एम्बुलेंसेज को निशाना बनाया। 392 तालीमी इदारों और 184 मसाजिद पर भी गोलाबारी की गई। ईरान के शहर रासिक और चाबहार में पुलिस और मिलिट्री पोस्टों पर हमले, 10 अफराद जाँ बहक। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 18 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंतजामिया के जाबिराना इक़दामात, गैर कश्मीरी बाशिंदों की आबादकारी की मुहिम तेज। हाईकोर्ट की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी की तासीर। हुर्रियत क़यादत का इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। मोदी हुकूमत के अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम जारी। नई दिल्ली की तारीखी शाही ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी आयद। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट सीरीज मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज में 3 वनडे और 5 T20 मैचेस शामिल। And now Doku and Rodri. और इंग्लिश प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर सिटी के ऑस्टन विला के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। फिल फूडन की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की पहली पोजीशन, लिवरपूल दूसरे और मैनचेस्टर सिटी तीसरे नंबर पर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जल्दी जल्दी में कुछ भूल नहीं जाना। फिक्र नहीं करें, सब रख दिया। अच्छा, कितने पैसे हुए? बाजी 4,200 हो गए। अच्छा, पेमेंट रात से कर दे बाजी। रात से? जी हाँ, अब रात से पेमेंट इतनी आसान, यानी अपने बैंक की ऐप खोलो, QR कोड स्कैन करो और रात से ऑनलाइन पेमेंट करो, क्योंकि रात फौरी, फ्री, आसान और महफूज भी। रास्त पल भर में, मुल्क भर में। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजेस को मौसूल होने वाले मशकूक खतूत संजीदा मामला है। तहकीकात जारी हैं, सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए IMF का एक और प्रोग्राम जरूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी से भी राय ली गई। बाद में उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब इस मामले पर अदालत उज़्मा अज खुद कार्रवाई कर रही है। वजीर आज़म ने कहा कि जजेस को मौसूल होने वाले मशकूक खतूत एक संजीदा मामला है, इस पर सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।
मुआशी इस्तेहकाम, गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे को अपनी अवलीन तरजीह करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि बरामदात में इजाफे और मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए वजारतों की कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूँ। इस हवाले से दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। सेक्टोरल रिव्यू में इन मिनिस्ट्रीज का मैं करूँगा ताकि जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं उनको हम बड़ी तेज़ी के साथ हम उनको सॉल्व करें, ताकि मुल्क की जो मईशत है वो अपने पाँव पे खड़ी हो और जो महंगाई बतदरीज कमी की तरफ जा रही है और बेरोज़गारी में कमी लाने के लिए, गुर्बत में कमी लाने के लिए हमें दिन रात हमें काविशें करनी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निजकारी के शेड्यूल और खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी पर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है। मुल्क में चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए ठोस लाहे अमल तय कर रहे हैं। इजलास में खजाना डिवीजन की जानिब से फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, डेट पॉलिसी स्टेटमेंट और एयर एंड गवर्नमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। विफाकी काबीना ने ये स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करने की मंजूरी दी। विफाकी काबीना ने साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद अमजद खान नियाजी को सऊदी अरब और मलेशिया की हुकूमतों की जानिब से अवार्ड वसूल करने की इजाजत दी। नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ विमेन के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत इंसानी हकूक की सिफारिश पर नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लाइन ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन के दफातर खत्म करने की मंजूरी दी। इन इदारों के मुलाजमीन को सरप्लस पूल में शामिल किया जाएगा। हुकूमत की कफायतशारी की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इन इदारों को बंद करने का फैसला किया गया है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खसारे के शिकार सरकारी मिल्कियत के इदारों में इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर से पार्टनरशिप की जाएगी। सरकारी कर्ज में बदतरीज कमी, पेंशन, सब्सिडी और सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के साथ निजकारी पर हुकूमत की भरपूर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म ने बैरूनी कर्जों को कम करने के लिए एक जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि इक़्तिसादी शोबे की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी शहरियत याफ्ता माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। हुकूमत IMF के साथ आइंदा प्रोग्राम के लिए भी भरपूर मेहनत करेगी। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर बोझ डाले बगैर महसूलात में इजाफे के लिए जामे प्लान पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि आइंदा 5 बरस में टैक्स टू GDP 15% तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि विफाक 18वीं तरमीम के तहत तमाम मुतालिका वजारतें और इदारे सूबों के हवाले करेगा, जबकि माली खसारे को कम करने के लिए खर्चों में कमी की जाएगी। इजलास में महसूलात, माली खसारे, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और करंट अकाउंट के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गज़ा में इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुकात है और हमने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर केस में आलमी अदालत इंसाफ के अबूरी फैसले का जिक्र करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने भी आलमी अदालत में फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद की इसराइल के हाथों खुली खिलाफ वर्जी पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने फ़लस्तीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तमाम आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि अब तक पाकिस्तान गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान की 7 खेप भिजवा चुका है। एक और खेप ईद के फ़ौरन बाद भिजवाई जाएगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने मुश्किल वक्त में भरपूर हिमायत और ताउन पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में रूस के सफ़ीर एल्बर्ट खोरेर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तवानाई और वाटर तिजारत में ताउन के फ़रोग के ख़्वाहां हैं। तिजारत में इजाफे के लिए रूसी बैंकों को पाकिस्तान में काम शुरू करने की तरगीब देनी चाहिए। सदर मुमलिकत ने व्लादिमीर पुतिन को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि उनकी क़यादत में रूस तेज़ तर मुआशी तरक्की करेगा और आलमी अमन को फ़रोग हासिल होगा। उन्होंने मॉस्को में होने वाले दहशतगर्द हमले में मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। रूसी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मौजूदा तिजारती हजम को दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम समेत दीगर उमूर में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं।
صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چین کے سفیر یانگ سے جانگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اقتصادی استحکام کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دینی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ وزیراعظم کی ماحولیاتی تبدیلی کی کوارڈینیٹر رومینہ خورشید عالم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں اطلاعات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ معاشی استحکام کی بنیاد وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ہماری پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں رکھی گئی۔ ہم نے بہت سفر طے کیا ہے جس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ لفٹ آف کر رہی ہے، اور جس طریقے سے IMF کے معاہدے طے ہوئے ہیں، ابھی بھی سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، تو سٹاک ایکسچینج میں بڑا ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ آج بھی ریکارڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ بلومبرگ ایک بڑا اچھی شہرت کا حامل بین الاقوامی مالیاتی جریدہ ہے جس نے یہ پریڈکشن دی ہے مہنگائی جو ہے وہ اگلے سال 15% پہ آ جائے گی، اور جو پرسوں بھی رپورٹ آئی کہ اب اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، 2% کا فرق پڑا ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری اور قومی مفاد کے لیے پوری قوم متحد ہے، معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دینا ہوگی۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر سیاستدان ہیں، صحافی ہیں۔ پاکستان پہلے، سیاسی جماعتیں سیاست بعد میں۔ ہم نیشنل ایشوز پہ سیاست کریں، ہم معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی طرف جائیں، اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں، اس لیے ہمیں معیشت کو سیاست کی نظر نہیں کرنا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف ملک کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، یقین ہے کہ ان کی قیادت میں جلد ملک کو تمام مسائل سے نکال لیں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملک کی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل، پاکستان سٹاک ایکسچینج نے 68,000 کی سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس 660 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 68,416 پر بند ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ کاروباری دن کے آغاز سے 100 انڈیکس نے بلند سطح پر ٹریڈ کیا اور 68,000 کی نفسیاتی حد کو نہ صرف عبور کیا بلکہ اسے برقرار بھی رکھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ خصوصی سرمایہ کار سہولت کونسل میں سرمایہ کاری کے حجم میں اضافے، پیٹرولیم، گیس اور آئل سیکٹر کے شعبے کے علاوہ سیمنٹ اور کیمیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عالمی اداروں کی پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت رپورٹس اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ مسلسل پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں سرمایہ کاروں کا موجودہ فائنینشیل ٹیم اور موجودہ نو منتخب فائنانس منسٹر جناب اورنگزیب خان پر مکمل اعتماد کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے پچھلے 8 مہینے میں میکرو اکنامکس اسٹیبلٹی کو کافی حد تک حاصل کرا ہے۔ جولائی سے لے کر فروری تک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تقریباً 30% گھٹا، جبکہ انفلیشن 28% سے گھٹ کے 23% پر آ گیا، اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پاکستان نے فروری تک مینٹین کیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری حجم بھی دن کی ابتدا سے بہتر رہا اور دن کے اختتام پر 38 کروڑ 87 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 17 ارب 88 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ بازار حصص میں 202 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 107 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 22 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 45ویں برسی منائی گئی۔ قائد عوام کی سیاسی زندگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں شراز علی ڈاہری کی رپورٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو کا شمار ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہے اور عوامی سیاست کی۔ ملکی سیاست، بین الاقوامی سطح پر خارجہ پالیسی اور مشکل حالات میں دانش مندی اور دور اندیشی سے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی فیصلے کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے سیاست اور قانون کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔
1958 में बाकायदा सियासत का आगाज किया और मुल्क के वजीर खारजा बने। इस साल जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम शहादत मनाया जाएगा तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास जो रेफरेंस भेजा गया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के फैसले पर, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का चांस नहीं मिला और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के इलेक्शंस में मगरबी पाकिस्तान में कामयाबी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उनके दौरे हुकूमत में 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, शुमला मुआहिदा और एटमी ताकत बनने की बुनियाद रखी गई, जो कि उनकी सियासी बसीरत और कायदाना सलाहियतों का नतीजा था। सियासत को अवामी बनाना, सियासत को मुतहरिक करके मुल्क में एक कुव्वत दिखाना, वो भुट्टो साहब का ही कारनामा है और भुट्टो साहब ने उसकी कीमत भी अदा की। भुट्टो साहब मोबे वतन कौम परस्त पाकिस्तानी रहनुमा थे जिनकी उनको सज़ा मिली और उनसे इंतकाम लिया गया, आवाम को जगाने का, आवाम को मुत्तहद करने का, सियासी तौर पर बाशऊर करने का। 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसी मुकदमे में ही फांसी की सज़ा सुनाई गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन वो मुस्तरद हुई और यूं 4 अप्रैल 1979 को मुल्की सियासत और जमहूरियत के चमकते सितारे को रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम के लिए खिदमात पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया है और कहा है कि उन्हें गैर शफाफ अदालती कार्रवाई के जरिए फांसी की सज़ा सुनाई गई। 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तारीखी गलती का इज़ाला किया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अहल खाना और कारकुनों के लिए इस नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का इज़ाला महज आंसू और ना ख़त्म होने वाला अफसोस है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मग़फ़िरत और उनसे वाबस्ता तमाम लोगों के लिए सब्र की दुआ करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि कायदे अवाम ने जंग से तबाह हाल मुल्क की दोबारा तामीर करके पाकिस्तान को दुनिया के बावकार मुल्कों की सफ़ में शामिल किया। कायदे अवाम का कत्ल दरअसल तेज़ रफ्तार तरक्की की राह रोकना था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का परचम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। कायदे अवाम के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बगैर किसी खौफ और घबराहट के मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कश्मीर कॉज के साथ खास वाबस्तगी थी। अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तारीखी तकरीर हो या कश्मीर के लिए 1000 साल तक लड़ने का अज़्म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमेशा इस मसले को भरपूर अंदाज में पेश किया। तफसील जानेंगे अदील अहमद खान की रिपोर्ट में। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की, वो आपकी कश्मीर के साथ वाबस्तगी की भरपूर मिसाल है। Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin of ours. कश्मीरियों के साथ यकजहती के अलामती इजहार के लिए यौम यकजहती कश्मीर पहली मरतबा 1975 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही हिदायत पर मनाया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया, एक अज़म दिया और उनका एक मारूफ फरमान है कि मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, लेकिन मैं मसले कश्मीर पर ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतअद्दिद मरतबा आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाए। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पार्टी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद ने गढ़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ख़ानदान के दूसरे अफराद की कब्रों पर हाज़िरी दी और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। माह रमज़ान की वजह से मरकज़ी जलसा आम की तारीख तब्दील करके 14 अप्रैल मुक़र्रर की गई है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। पीपल्स पार्टी अपने कायदीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम के सियासी, माशी और आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़,
यकीनी बनाएगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जिंदगी में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मुस्लिम लीग के साथ, उसमें हमने तकरीबन 90% अमल दरामद कर दी। अगर कोई काम रह गया तो वो हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जुडिशल रिफॉर्म्स का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वफाकी हुकूमत से, और हमें अपना जिद्दोजहद करना चाहिए पूरा मुल्क में, नेशनल असेंबलीज में, पार्लियामान में, कि हम वो जो हमने वादा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, उस पे हम अमल दरामद करें। हम आइन में या कानून में जो तरमीमें ले आने पड़ेंगे वो लेकर आए, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिलवा सकें। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में भी कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी क़यादत समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुरान ख़ानी के बाद दुआ भी की गई। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम की समाजी और माशी तरक्की के लिए कोशिश हैं, तरक्याती मंसूबों की तकमील बर वक्त की जाएगी। तफसील जानते हैं मोहम्मद सुफियान से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हासन ने मुलाकात की और पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, बामी इश्तराक कार्य जारी रखने पर इत्तफाक और पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर ओबेक आरिफ उस्मानोफ ने मुलाकात की और पहली खातून वज़ीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। उज़्बेक सफीर ओबेक आरिफ उस्मानोफ ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के वस्ती एशियाई रियासतों के तिजारती रूट्स के विजन को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है, समाजी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआशी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात की और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बामिल दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के पार्टी अमूर पर भी मुशावरत की गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब में पायदार तरक्की के लिए इख्तराई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पंजाब भर में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेसवेज और 3 मोटरवेज बनाए जाएंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मेहदी सफ़ारी की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान पार्लिमानी रवाबित में इजाफ़ा ज़रूरी है। पार्लिमानी राबते दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से ईरान के नायब वज़ीर की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने बताया कि इस वक्त ईरान की जेलों में 160 पाकिस्तानी कैदी जबकि पाकिस्तान में 60 ईरानी कैदी हैं। फ़रीक़ैन ने कैदियों की रिहाई के लिए ताउन और इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर क़ानून ने ईरानी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि ऐसे अफराद जो किसी संगीन जुर्म में मुलव्वस नहीं, उनकी रिहाई तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दिफा के शोबे में ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की बदौलत पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरक्की के मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इस मंसूबे का मकसद आलमी सतह पर अरबों डॉलर की इस सनत को अपनी जानिब राग़िब करना है। इस मंसूबे का मकसद इब्तदाई तौर पर सेमीकंडक्टर्स के डिज़ाइन पर तवज्जो मरकूज़ करना है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान अगली बेहतरीन मंजिल बनने की सलाहियत रखता है। एक जदीद मुआशरे के तमाम पहलुओं के लिए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंतहाई ज़रूरी है। इस मंसूबे के तहत पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सेमीकंडक्टर सेक्टर को उजागर किया जाएगा।
जापान सिंध में 2 मंसूबों के लिए 1 अरब 50 करोड़ येन से जायद रकम फराहम करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर काजिम नियाज और जापानी सफीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत सक्कर में मौसमियाती रेडार की तनसीब के लिए 83 करोड़ 20 लाख येन, जबकि सिंध में जच्चा बच्चा की सेहत के मंसूबे के लिए 67 करोड़ 10 लाख येन से ज्यादा के फंड्स फराहम किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सारा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीम TTP के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को करते हैं कि वो कलअदम TTP के खिलाफ एक्शन ले। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दासू हमले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने गजा में इसराइली मुजालिम की मजम्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों को ग़िज़ाई क़िल्लत जैसे चैलेंजेस का सामना है। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जंग बंदी की करारदाद पर अमल करे। आलमी बिरादरी जंगी जराइम पर इसराइल का एहतसाब करे। उन्होंने कहा कि शाम में ईरानी कौंसिल खाने पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वापसी का ख्वाहां है। एक और सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि चीनी इंटर एजेंसी के सिक्योरिटी से मुताल्लिक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया है। दौरे का मकसद पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजती इंतजामात को बेहतर बनाना है। और अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देता रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया कि हम सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल पर उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। अमरीका भारत की जानिब से सिख रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहा है। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद के मामले पर अमरीकी तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि शराकतदारों से कहते हैं कि ये यकीनी बनाया जाए कि इमदाद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। हम इसकी निगरानी करते रहते हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करें। गजा में इस्राएली फौज के मजालिम आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। गजा, रफा और खान यूनिस के निहत्ते शहरियों पर शदीद बमबारी मामूल बन चुका है। मुसलसल 6 माह से जारी सेहूनी दहशतगर्दी में और नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में शहादतों की तादाद 33,000 से तजावज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 62 अफराद शहीद और 93 ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता 6 माह से जारी सेहूनी मज़ालिम में शहादा की मजमूई तादाद 33,037 हो गई है, जबकि 75,668 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौजियों ने गजा के इलाके दिरुल बलाह और रफा शहर में घरों पर रात गए हवाई फायरिंग और भारी तोपखाने से बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 बच्चों समेत कम अज़ कम 8 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी शहीद और 10 ज़ख्मी हो गए। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज फौज के मुजालिम जारी हैं, जुनैन में सफाक फौजियों ने एक कार्रवाई के दौरान एक नौजवान को शहीद कर दिया, जबकि 40 को गिरफ्तार कर लिया। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियस ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की तबाही के बाद वहाँ से मज़ीद तिब्बी इनखला की ज़रूरत है। अगर अस्पताल से मरीजों को ना निकाला गया तो अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल कल जनेवा में एक मुसव्वदा करारदाद पर गौर करेगी, जिसमें इसराइल के खिलाफ हथियारों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया जाएगा। करारदाद में शहरियों की भूख को जंग के तरीक़ाकार के तौर पर इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की गई है। मुसव्वदे को 18 मुल्कों की हिमायत हासिल है। ईरान के शहर रासिक और चाबहार में बैक वक्त पुलिस और मिलिट्री पोस्टों पर 2 हमलों में 10 अहलकार जाँ-बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने पुलिस और मिलिट्री चेक पोस्टों पर हमले में मुलव्विस 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी पुलिस अमूर माजिद मीर अहमदी ने कहा कि शहर चाबहार और रासिक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के हमले को मुकम्मल नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान ने ईरान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने एक बयान में कहा है कि हमले के मुतासिरीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में बढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ईरान के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हाई कोर्ट ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर पाबंदी की तौसीक कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय वजारत दाखिला ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को अक्टूबर 2023 में एक गैर कानूनी तंजीम करार दिया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता पर मुश्तमिल एक रुकनी ट्रिब्यूनल ने वजारत दाखिला के फैसले की तौसीक कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर में नौआबादियाती एजेंडे पर अमल दरामद से रोके और मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि आज़ादी पसंद तंजीमों पर पाबंदियां लगाना, कश्मीरियों की अमलाक छीनना, उन्हें ज़मीनों से बेदखल और मुलाजमतों से बरतरफ करना मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी आबादकारी की नौआबादियाती मुहिम का हिस्सा है। कश्मीरी सिविल सोसाइटी के अरकान डॉक्टर ज़ुबैर अहमद, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इकबाल शाहीन और सैयद हैदर हुसैन ने
سری نگر میں اپنے میڈیا انٹرویوز میں کہا ہے کہ کشمیری عوام بی جے پی اور RSS کی کٹھ کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کشمیر میں اپنے مسلم مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کٹھ پتلیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے والے تحریک آزادی کے غدار ہیں اور برا انجام ان کا مقدر ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی فرقہ پرست بھارتی حکومت نے دارالحکومت نئی دلی کے علاقے مہرولی میں واقع تاریخی شاہی عیدگاہ میں نماز عید کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مسلمانوں نے پولیس حکام کو اس حوالے سے درخواستیں بھی دی ہیں جو مسترد کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، انتہا پسند بی جے پی کے دور حکومت میں بھارت میں جمہوریت اور صحافت کی دھجیاں اڑنے لگی ہیں۔ مودی حکومت انتخابات میں کامیابی کے لیے بھارتی میڈیا پر پوری طرح قابض ہو چکی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق مودی کی خود ساختہ مقبولیت کو نمایاں کرنے کے لیے بی جے پی نے حال ہی میں تقریباً 10 بالی ووڈ فلمز ریلیز کی ہیں۔ بی جے پی حکومت نے دہلی میں آبزرورز ریسرچ فاؤنڈیشن نامی تھنک ٹینک قائم کیا ہے جو محض مودی کی جمہوریت پسندی کا راگ الاپنے میں مصروف ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار بھارت گزشتہ چند سال سے مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ انتہا پسند پالیسیوں کے بعد مودی راج میں کرپشن کی کہانیاں بھی عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کر چکی ہیں۔ مودی کے دور میں ارب پتی راج کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کو سیاسی فنڈنگ کا 58% حصہ بھارت کے امراء کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق بھارت میں بی جے پی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2023 میں کیے گئے ایک عالمی سروے کے مطابق غلط معلومات کی تشہیر اور پھیلاؤ میں بھارت سب سے آگے ہے۔ تکنیکی مسائل کے باعث بھارتی فضائیہ میں حادثات معمول بن گئے ہیں۔ 12 مارچ کو بھارتی جنگی جہاز تیجا ریاست راجستھان میں جاری مشقوں کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ حادثے سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ طیارے کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ بھارتی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ حفاظتی لینڈنگ کے ساز و سامان کی عدم موجودگی بھی طیارہ حادثے کی وجہ بنی۔ رپورٹ کے مطابق تیجا طیارے کی اڑان سے قبل ہی طیارے میں تکنیکی خرابیوں کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک خرابیاں بھی موجود تھیں جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ گزشتہ سال بھی راجستھان میں بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تیجا طیارے کے تباہ ہونے کے بعد ایک بار پھر بھارتی فضائیہ کی نااہلی، جہازوں میں سافٹ ویئرز اور بناوٹ کے مسائل پوری دنیا پر عیاں ہو چکے ہیں۔ کچھ دیگر خبروں میں یہاں آپ کو بتائیں، قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین کو وزارت کے امور پر بریف کیا گیا۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین نے کہا کہ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی ترقی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پوشیدہ ہے۔ زراعت کی بہتری کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دیں گے۔ وفاقی وزیر اقتصادی مراحت خان چیمہ سے جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعاون میں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ کمیشن کے ذریعے دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری، دفاعی صنعت، زراعت، توانائی اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ سفیر نے کاروبار، بینکنگ، آئی ٹی اور ٹرانسپورٹ جیسے اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نجکاری کمیشن بورڈ کا اجلاس وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ بورڈ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے پیش کی گئی بولیوں کی جانچ کے لیے پری کوالیفیکیشن کمیٹی کی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی آئی کی نجکاری مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش موقع ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی تاجر برادری بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کہا ہے کہ نوجوان طبقے کی استعداد بروئے کار لا کر ملک کی ترقی میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں ملک کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مل کر اور یکسوئی سے کام کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بعد دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ فوکس ایک ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر کے معیشت کو دوبارہ اس سٹیج پر لانا ہے جس پر ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کہا پاکستان کی آبادی کا 70% یوتھ پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی نوجوانوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ پروگرام ہو یا پھر یوتھ لون پروگرام، یہ مسلم لیگ نون نے ہی نوجوانوں کے لیے شروع کیے تھے۔ نوجوانوں کے قرض پروگرام میں ریکوری 98% تک ہے۔ 17 کروڑ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ کے اندر سے یوتھ کے اوپر محیط ہے۔ آج اگر پاکستان میں خوشحالی کو لے کر آنا ہے تو اس یوتھ کو ایک پلیٹ فارم دینا ہوگا، اس یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہوگا، پاکستان کے ان نوجوان بچے اور بچیوں کو
یہ اعتماد دینا ہوگا کہ اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو آپ کو میرٹ کی بنیاد پر اس کا صلہ ملے گا۔ رانا مشہود احمد کہتے ہیں آئی ٹی اور ای گیمنگ کے حوالے سے پاکستانی نوجوانوں میں کافی استعداد پایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والے عالمی مقابلے میں پاکستان بھرپور شرکت کرے گا۔ اولمپکس کے ساتھ مل کر ایک ای سپورٹس گیمنگ آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں، جبکہ اس سال ہونے والی نیشنل گیم سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم کے ویژن کے تحت پاکستان میں صحت کے فروغ پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزارت تجارت کے زیر اہتمام پری بجٹ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ ہمیں معیشت کی بہتری کے لیے زراعت کے ساتھ صنعتی شعبے پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمیں سرمایہ کاروں کو اعتماد فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ٹیرف کے ڈھانچے کو آسان بنانا بلکہ برآمدات میں اضافہ بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سمگلنگ، ٹیکس چوری روکنے اور بزنس کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو امپیڈمنٹس ہیں جو ریسٹرکٹ کر رہی ہیں پاکستان کے گروتھ کو ان ٹرمز آف ویدر وی کال اٹ دا ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ، یا ہم اس کو کہتے ہیں لارج مینوفیکچرنگ کی اگر آپ بات کریں، یا ویلیو ایڈیشن کی اگر آپ بات کریں، یہ وہ وینیوز اور وینچرز ہیں جن پہ بہت ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اپنی سیریسنس دکھائے اور فیسیلیٹیٹ کس کو کرے، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے۔ وی ہیو ٹو کم اپ ود پراپر کانکریٹ اسٹیپس جو کہ آپ کی ٹرمینالوجی اور آپ کے بزنس کو وائبل بنائے۔ تقریب میں تاجروں اور کاروباری افراد نے ملکی صنعت خاص طور پر برآمدی شعبے کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست اسکیم کا اجرا، جس کے تحت تمام غیر رجسٹرڈ ہول سیلرز، ڈیلرز، ریٹیلرز اور چھوٹے دکانداروں کو 30 اپریل 2024 سے پہلے رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ ایف بی آر کی ٹیکس آسان ایپ، ایف بی آر پورٹل یا ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر کے ذریعے آسانی سے رجسٹریشن کروائیں اور ایڈوانس ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر 25% رعایت، جبکہ مالی سال 2023 کے نان فائلرز ریٹرن فائل کرنے پر ایڈوانس ٹیکس کی ماہانہ ادائیگی پر 25% مزید رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 30 اپریل 2024 ہے، جس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 182 کے تحت جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تو آج ہی اپنی رجسٹریشن کروائیں، ملک کی تعمیر و ترقی میں ایف بی آر کا ساتھ نبھائیں۔ ایف بی آر۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما حافظ نعیب الرحمان تنظیم کے چھٹے امیر منتخب ہو گئے ہیں۔ وہ 2029 تک بحیثیت امیر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان سید منور حسین کے بعد دوسرے امیر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ زمانہ طالب علمی سے اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم میں اعلیٰ رہے ہیں اور پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں۔ تنظیمی انتخابات میں ملک بھر سے 45,000 اراکین نے حق رائے دہی استعمال کیا، جن میں 6,000 خواتین بھی شامل تھیں۔ امارات کے انتخاب میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان نے حصہ لیا۔ حافظ نعیم الرحمان 80% سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان کو امیر جماعت اسلامی منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی جمہوریت کی بقا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرے گی۔ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کہانی بھی جھوٹی نکلی۔ پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طبی معائنے میں زہر دینے یا ٹوائلٹ کلینر کے قطرے کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق پیمز کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے 51 سالہ بشرا بی بی کی طرف سے زہر دینے کی شکایت پر ان کا مفصل طبی معائنہ کیا۔ طبی معائنے اور میڈیکل ٹیسٹ کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بشرا بی بی کو کوئی زہر یا ٹوائلٹ کلینر کے قطرے نہیں دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج نے بھی تصدیق کی ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں پر وکیل صفائی کی سزا معطلی کی استدعا پر عدالت نے کہا ہے کہ سزا معطل کرنے کی بجائے مرکزی اپیلوں پر فیصلہ کریں گے۔ مقدمے کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में महकमा लाइव स्टॉक का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला को महकमे के इंतजामी उमूर, तरक्याती मनसूबों, इस्लाहात, आइंदा के लाहे अमल और दीगर मुतालिका उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का कहना था कि शोबा लाइव स्टॉक की इस्तेदाद बुरुकार लाकर रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने डेयरी मसनूआत में इजाफे के लिए मुतालिका हुकाम को इक़दाम की हिदायत की। गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्तहिक और बेसहारा बच्चों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लास्ट्रा। मुस्तहिक और बेसहारा बच्चे भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें जिंदगी की खुशियों में शामिल करना हमारा फर्ज है। इसी मकसद के लिए लाहौर के गवर्नर हाउस में बेसहारा बच्चों को खसूसी तौर पर इफ्तार पर मदऊ किया गया। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट ने इन बेसहारा बच्चों को गवर्नर हाउस लाने का इंतजाम किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि बच्चों को अपने दरमियान देख कर बेहद खुशी हो रही है। गवर्नर हाउस के दरवाजे इन बच्चों के लिए हमेशा खुले हैं। उसमें जितने मेहमान आते हैं उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो आज आप लोग आए हुए हैं। हमारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। बच्चों ने गवर्नर पंजाब के साथ कुछ वक्त गुजारा। गवर्नर पंजाब ने बेसहारा बच्चों को प्यार किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं की दुआ की। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ये खूबसूरत जगह, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें यूथ पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा एक मौका दिया कि हम इस तरह इंटरेक्शन भी करें और उनके साथ वक्त भी गुजारें। अच्छा लगा बच्चों से मिलके, उनके साथ इंटरैक्ट करके, उनको गिफ्ट्स दे के एक अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई, इफ्तारी हुई। नन्हे फरिश्तों ने गवर्नर हाउस में रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा किया। इस मौका पर बच्चों की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी दीदनी थी। यतीम और बेसहारा बच्चों को गवर्नर हाउस में दी जाने वाली ये इफ्तारी एक निहायत उम्दा अमल है। ताहिर क्लास्ट्रा, PTV न्यूज़, लाहौर। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सस्ते नरखों पर सब्जियां, फल और दूसरी अशिया फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर में ज़राई फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। तफसील बता रही हैं किंजा नकवी। माह मुकद्दस में सब्जियों और फलों समेत बेसन और खजूरों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ताहम ये अशिया आम लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस मुश्किल का इदराक करते हुए सूबे भर में महकमा ज़राअत के तहत ज़राई फेयर प्राइस शॉप्स कायम कराई हैं, जहाँ लोगों को होल सेल से भी कम नरखों पर ताज़ा सब्जियाँ, फल, बेसन, खजूरें और दालें मैसर हैं। ऐसी ही एक फेयर प्राइस शॉप रावलपिंडी के इलाके चूर चौक में कायम की गई है, जहाँ पे 13 सिलेक्टेड आइटम्स जो हैं वो 25% लेस देन होल सेल रेट्स आवाम को मुहैया की जा रही हैं। तकरीबन डेली जो है वो 8 से 10 हज़ार लोगों को इससे रिलीफ मिल रहा है और हम अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। मॉडल बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले सफेद पोश शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इस किस्म की फेयर प्राइस शॉप्स उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। एग्रीकल्चर फेयर शॉप बनाई गई है, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें सस्ती हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छी चीज़ जो है ना वो कितारों में जो है ना बगैर किसी कंप्लेन के, ओवर चार्जिंग के 25% सस्ती मिल रही है। आम रेट से बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, साफ़ सुथरी हैं। मार्केट से बहुत अच्छे रेट, कम रेट पे यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फेयर प्राइस शॉप्स पर खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए हैं। ज्यादा रश से लोगों को बचाने के लिए फल और सब्जियों के पैकेट्स बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया की दस्तयाबी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यकीनी बनाई जा रही है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शायर और नक़ाद अख्तर उस्मान 57 साल के हो गए। इस्लामाबाद में पैदा होने वाले अख्तर महमूद दुनिया अदब में अख्तर उस्मान के नाम से मशहूर हुए। आप उर्दू, फारसी, पंजाबी, पोठोहारी, हिंदी और अंग्रेजी जुबान में बैक वक्त शायरी करते हैं। अब तक उनके शायरी के दर्जन के करीब मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें अपनी अपनी सलीब, कुछ बचा लाए हैं और शफकाबाद ने बेहद मकबूलियत हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जैकबाबाद में 39,
خیرپور اور موہنجو داڑو 38, جبکہ ملتان میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 35، کراچی 34، پشاور 28، جبکہ کوئٹہ میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔